Hello children, welcome to Little Scholars Public School. Students, today we are going to start new lesson, that is the heredity and variations. First of all, we should know what is meant by heredity. Heredity means the passing of physical characteristics from parents to offspring. Means whatever the characteristics having in our parent, like skin color, eye color, hair curly or the straight or the nose, everything, whatever character having in our parent, that transfer to offspring, that is known as the heredity. सिंपली हम क्या कहते हैं, हमारे पेरेंट के जो फीचर्स है, जैसे नाक, कान, या फिर स्किन का कलर, आईज का कलर, हेयर का कलर, हाइट, ये सारी चीज़ें जो पेरेंट्स से उनके ऑफस्प्रिंग में, उनके बच्चों में ये चीज़ें आती है, दैट इज़ अ फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, दैट इज़ नोन एज द हेरिडिटी. उसमें क्या क्या आता है, सी हियर विच कैरेक्टर्स कम्स बेटा, दैट इट कम्स हेयर. if the parents hair are curly or the straight, so same or little bit differences we get in their children. Color of the eyes, height, if it is a tall, then their children also can be tall. So it depend upon the whatever the characters come from our parents. Intelligence, talent, dimples, are such many things or many characters come from our parents to us or their offspring. So children, first of all, we are going to learn about the chromosomes. As you know that human beings have 23 pairs of a chromosome. In our last class, in 8th standard, we have learnt about that. So that chromosomes, where it located in our cell, so that all the basic things we are going to learn in this session. So basic unit will take first, that cell, it is are the structural and the functional unit of human being or any living organism. So in that, where it is located, in that cell there is a nucleus is there. Here children, you can see, in this cell nucleus is there, and in that nucleus we can see the thread like structure, that it is known as chromatids. Yes, it is a triangle thread, we can see it is a jumbled, it is not a separated. So that is tangle thread, it is known as the chromatid. That we say, if you want to separate it, then it is possible, or we can, if you want to divide that separate that thread, is it possible to divide in between them? No. So imagine if many threads are tangled together, and if you want to make it separate, then how it will be, how we can make it better? So how we have to first make the color wise all the threads separately, and then we have to make it bundle. The same thing it can be with the chromatid. If you want to make it a separate, then what we can do, then the tangle threads we have to condense it, it will be condensed, and then it gives the shape like a coiling structure, like a telephone coil structure it will get, and then only we can make it separate, that chromatid. Then we'll get the this X shape shape, then that it is known as chromosomes. So have you familiar with this shape? Yes. So what it is, children? It is a chromosome. So chromosome means from where it is made, beta? Chromosome made from the that tangle thread structure, means the chromatids different form is chromosome, we can say. Okay. So here it is the all the genetic information located. Children, why we are learning this? Because all genetic information stored in the nucleus of the cell in the form of what? Chromatid, and their chromatid structure only will get
in another form, that is the chromosome. When it will get coiled, it will get condensed, will get another shape, that is known as the chromosome. Okay, ये जो सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर हमने सुना है कि डीएनए रहता है. डीएनए मतलब व्हाट? दैट इज क्रोमोसोम. ये अलग अलग फॉर्म है, क्रोमैटिड, क्रोमोसोम. फर्स्ट, बिफोर द डिवीजन प्रोसेस, सेल डिवीजन प्रोसेस, हमें क्रोमैटिड फॉर्म में मिलेगा, है ना, स्ट्रक्चर, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, दैट इज द क्रोमैटिड. जब वो सेल डिवीजन करना होता है उस टाइम पे वो खुद को कॉइल करता है, कंडेंस करता है और डिफरेंट शेप मिलता है, दैट इज द क्रोमोसोम. सेकेंड थिंग, सो विल थिंक दैट ये क्रोमोसोम किससे बना है, और ये प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन के टाइम पे ही आपको दिखेगा क्रोमोसोम स्ट्रक्चर. बिफोर कौन सा शेप मिलेगा हमें? क्रोमैटिड, टैंगल में, मिक्सअप. यस, सो ये क्रोमोसोम है चिल्ड्रन, ये किससे बना होगा? किसी न किसी चीज़ से बना होगा ना. जैसे क्रोमोसोम क्रोमैटिड का फॉर्म है, तो क्रोमोसोम के अंदर क्या है, ये क्वेश्चन आपको आएगा ही आएगा. क्रोमोसोम मीन्स एग्जैक्टली है क्या. तो ये क्रोमोसोम भी किससे बना है? हम अगर जूम करके देखेंगे क्रोमोसोम को तो हमें दिखेंगे स्मॉल स्मॉल सेगमेंट उसके ऊपर दिखेंगे. मतलब ये स्मॉल सेगमेंट से एक क्रोमोसोम बनता है, उसे हम नाम देंगे जीन्स. आपने ये नाम बहुत बार सुना होगा कि पेरेंट के जीन्स हम में आए, या फिर अल्टरनेट हम यूज़ करते हैं डीएनए हम में आया. यस, और जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, या हम उनके जैसे दिखते हैं बिकॉज दैट जीन्स प्रेजेंट इन आर बॉडी, पेरेंट्स जीन्स ट्रांसफर टू अस. ओके, सो अगर इसको और हम जूम करके देखेंगे तो ये जो स्मॉल सेगमेंट है, जो जीन्स है, ये किससे बने हैं, ये देखेंगे हम बच्चों. तो जब इसको हम जूम करेंगे तो हमको स्मॉलर मॉलिक्यूल्स दिखाई देंगे. यस, जीन्स, जीन्स किससे किससे बने हैं? क्रोमोसोम के छोटे छोटे अगर हम पार्ट देखेंगे तो उसे कहेंगे जीन्स. ओके, जीन्स को जूम करके देखेंगे तो लार्ज मॉलिक्यूल हमें दिखाई देंगे, उनकी लॉन्ग चेन हमें दिखाई देगी. वो लार्ज मॉलिक्यूल को हम क्या कहेंगे? डीएनए. ओके, डीएनए मॉलिक्यूल, ये नाम हमने बहुत बार सुना है और इसके बारे में डिटेल स्टडी हम हमारे अपकमिंग वीडियो में करेंगे. व्हाट इज अ डीएनए, हाउ इट इज मेड, यस, what it is included, which type of acid it is in, that we are going to learn children in our upcoming video. So till that we'll see that DNA molecules again something made up of, किससे तो बना होगा वो, what it is then, that is the 3 units make the DNA. see here children, क्या क्या हो रहा है यहाँ पर. हमने देखा सेल के अंदर न्यूक्लियस है. here you can see सेल के अंदर क्या है? न्यूक्लियस है. न्यूक्लियस के अंदर हमें ये दिख रहे हैं स्मॉल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, उसे हम कहेंगे क्रोमैटिड. क्रोमैटिड जब खुद कॉइल होना शुरू होता है, कंडेंस होना शुरू होता है ड्यूरिंग द सेल डिवीजन, तो हमें मिलता है नेक्स्ट शेप, दैट इज द क्रोमोसोम. इसे कहेंगे हम क्रोमोसोम. तो ये क्रोमोसोम भी किसी से बना होगा चिल्ड्रन. तो अगर इसको जूम करके देखेंगे तो क्रोमोसोम के ऊपर हमें ये स्मॉल सेगमेंट दिखाई देंगे. ये स्मॉल सेगमेंट को ही हम क्या कहेंगे? जीन्स. यस, मतलब सारे जीन्स मिलाकर एक स्ट्रक्चर बनता है, उसे हम क्या कहेंगे? क्रोमोसोम्स. ये ठीक है. और ये क्रोमोसोम ये शेप बना है बिफोर सेल डिवीजन. थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हमें दिखेगा, ये शेप नहीं दिखेगा क्रोमोसोम का, तो इसे हम क्या कहेंगे? ये टैंगल शेप थ्रेड स्ट्रक्चर, दैट इज नोन एज द क्रोमैटिड. अभी ये जीन्स को हम जूम करके देखेंगे तो ये जीन्स किसके बने होंगे? लार्ज मॉलिक्यूल्स हमें दिखाई देंगे इसके, और ऐसी लॉन्ग चेन दिखाई देगी, इसे हम कहेंगे चिल्ड्रन डीएनए. यस, अबाउट दैट डीएनए वी आर गोइंग टू लर्न इन डिटेल इन आवर अपकमिंग वीडियो. नाउ सी, ये डीएनए भी किसी और चीज़ का बना होगा. तो ये डीएनए किसका बना होगा? 3 यूनिट्स मेक द डीएनए. ये 3 यूनिट क्या है? इन शॉर्ट आई विल से दैट चिल्ड्रन, डीएनए किससे बना होगा? एक तो पेंटोज शुगर प्लस phosphate and the nitrogenous base. क्या क्या? पेंटोज शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस एंड फॉस्फेट्स. ये 3 मॉलिक्यूल से 3 यूनिट से क्या बना है बच्चों? डीएनए बना है. इसके बारे में हम डिटेल स्टडी करेंगे, डीएनए एंड दीज 3 यूनिट्स इन अ डिटेल, हाउ इट फॉर्म्स. ओके, सो
ये जो डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर देख रहे हैं हम, जैसे क्रोमैटिड है, फिर उसमें उसके बाद क्रोमोसोम है, फिर ये जीन्स है, ये डीएनए है और ये 3 यूनिट्स है। तो ये ऑल टुगेदरली we can say the same thing, but the structure is the different, and what is they made up of, that we are going to learn in a upcoming video. Okay, in our next lecture we'll see about that. तो इसके डिफरेंट नेम है, कन्फ्यूजन होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, कन्फ्यूज़ मत हो। क्रोमैटिड धागा, जैसे हमारे सेल के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर हमें धागा दिखेगा, वो धागा जब कॉइल होगा, कंडेंस होगा। किस लिए कंडेंस करना है बच्चों? सेल डिवीजन के टाइम। सेल डिवीजन के टाइम वो कॉइल कॉइल करके वो खुद का एक स्ट्रक्चर बनाता है, उसे बोलेंगे क्रोमोसोम। क्रोमोसोम को जूम करके देखेंगे तो उसके ऊपर हमें दिखेंगे स्मॉल सेगमेंट, दैट इज द जीन्स। जीन्स किससे बना है? लार्ज मॉलिक्यूल्स, ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल किसके? डीएनए के। ये और डीएनए किसके बना है? दैट इज द 3 यूनिट। व्हाट इट इज चिल्ड्रन? पेंटोज शुगर, दैट इज द नाइट्रोजनस बेस एंड द फॉस्फेट टुगेदरली मेड क्या बनेगा? ये तीनों 3 यूनिट्स का डीएनए। ओके, सो डोंट बी कंफ्यूज। और ये इसमें सारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर्ड रहती है। जैसे मैंने बताया था, आइज का कलर, अगेन हेयर का कलर, हेयर कर्ली है या स्ट्रेट है, आपके पेरेंट्स की हाइट, ये सारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स है पेरेंट्स से हम तक आते हैं, उसे हम क्या कहेंगे बच्चों? दैट इज द डीएनए। और समटाइम्स अल्टरनेटली वी यूज डिफरेंट थिंग, जीन्स या फिर डीएनए। तो दैट इज ऑल दिस द फॉर्म ऑफ दिस व्हाट? genetic material, which one it is stored in the cell, in the nucleus. Okay, now so in our upcoming video we'll learn about the DNA molecule in a detail. So let us revise again children, once again we'll take from the back what it is. Okay, so हम पीछे से आएंगे। जैसे ये 3 यूनिट जो हमें दिख रहे हैं, और दैट मेक द डीएनए। 3 यूनिट जैसे मैंने बताए थे, क्या बनाएंगे? डीएनए। जूम कर कर अगर हमें देखेंगे तो ये लार्जर मॉलिक्यूल्स हमें दिखाई देंगे, दैट इट इज नोन एज द डीएनए मॉलिक्यूल्स। एंड दैट डीएनए, वेयर इट इज लोकेटेड चिल्ड्रन? इट इज लोकेटेड ऑन द genes. Yes, it is located on the genes, and that is the functional segment of a DNA, and that genes made up of what? Chromosome. That is the chromosome. And when the chromosomes are not in a shape, not in a structure, before the cell division they get in a tangled position, thread like structure, that is known as the chromatid. Yes children, we'll take. Now children, see, we are going to learn about the chromosome structure we have learnt, and this is the chromatid, that is the thread like structure. It comes in a tangle or the thread like mesh, we can say, that is the chromatid structure. And about the chromosome also we seen that how it's structure. Here it, we can see that this shape like X like shape, we can say. During the cell division we can see this shape, that is the chromosome. But children, we know that do you know that chromosome shapes is not same for all the 23 pairs of a chromosome. So do all 46 chromosomes look the same? Do you think? No, it do not look. And why then, if it is the same, then why we say then it comes in a pairs? Then no. So we are giving that answers of this question. We'll see about that. Chromosomes types are also there. Actually, what figure we know that that type of a chromosome structure is not having for all the chromosome. So types of chromosome depend upon what children? Now here you can see, you can note down also. Okay, यहाँ पे आप लिखिए टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम सिर्फ हमने एक ही शेप देखा है, लेकिन सारे क्रोमोसोम के जो शेप होते हैं, जो 23 पेयर्स है, आर नॉट लाइक अ सेम. सो इट डिपेंड्स अपॉन व्हाट चिल्ड्रन? टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम डिपेंड्स अपॉन स्ट्रक्चर ऑफ शेप एंड इट्स फंक्शन, है ना? अलग अलग टाइप के क्रोमोसोम हमें दिखाई देंगे, वो किस पे डिपेंड होंगे? स्ट्रक्चर ऑफ शेप एंड फंक्शन. नाउ हियर यू कैन सी चिल्ड्रन.
तो उसका क्लासिफिकेशन क्या है? क्रोमोसोम हम अलग अलग है शेप के हम बता रहे हैं, लेकिन उसका क्लासिफिकेशन क्या है? तो बेसिक क्लासिफिकेशन ऑफ दैट क्रोमोसोम, दैट शेप्स विल सी, एंड देन शेप, इन दैट शेप क्या क्लासिफिकेशन हम देखेंगे कि सेंट्रोमियर की पोजीशन कहाँ पर है उस क्रोमोसोम के अंदर, दैट वी आर दिस यू कैन सी चिल्ड्रन, इसे भी हम कहेंगे क्रोमोसोम, ये इसे हम कहेंगे क्रोमोसोम। ये तो शेप हमने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा है कि इस टाइप का क्रोमोसोम रहता है, हमारे दिमाग में ये है कि यही इसी टाइप का क्रोमोसोम हमें हमारे बॉडी में प्रेजेंट होता है, लेकिन ये गलत है। ऑल द टाइप्स ऑफ मोस्ट ऑफ द शेप्स आर डिफरेंट, यस दैट वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट दैट। सो इसे भी हम कहेंगे क्रोमोसोम और इसे भी हम कहेंगे क्रोमोसोम। सो ये क्राइटेरिया किस पे बेस है या फिर किसके बेसिस पे ये क्लासिफिकेशन करा जाता है कि ये क्रोमोसोम किसका है? सो हियर वी कैन सी इन द सेकेंड पिक्चर दैट आर द टू सिस्टर क्रोमैटिड्स, है ना। क्रोमैटिड हमने देखा है, उसकी वो अनदर कॉपी बना लेता है ना। यार यू कैन सी ये जो है ये भी क्रोमोसोम है। जब वो टैंगल शेप में रहता है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, उसे हम कहते हैं एक को क्रोमैटिड। जब वो क्या खुद को क्या करता है, कंडेंस करता है, किस लिए? सेल डिवीजन के लिए, और फिर उसकी एक खुद की एक कॉपी बना लेता है, ये वाला क्रोमैटिड, और फिर ये ऐसे दो कॉपी बनते हैं, उसे हम कहेंगे सिस्टर क्रोमैटिड। चिल्ड्रन यू कैन नोट डाउन दैट दिस इज द क्रोमैटिड एंड it makes another copy of itself for cell division, then we'll get the two sister chromatid and they are joined this in the middle structure that is known as the centromere. Okay, तो इसे हम कहेंगे उस पोजीशन को सेंट्रोमियर, और ऊपर और ये नीचे को हम कहेंगे आर्म्स। तो ऊपर वाले को कहेंगे पी आर्म, डाउन साइड लेंथ को हम कहेंगे क्यू आर्म। क्यों नाम दिए गए हैं पी और क्यू आर्म? किसके बेसिस पे? बेसिस ऑफ द लेंथ। ये नाम भी किसके बेसिस पे दिया गया है? ऊपर की लेंथ छोटी रहती है इसलिए कहेंगे हम उसे पी आर्म, एंड डाउन साइड लेंथ लिटिल बिट बड़ी होती है, किससे कंपैरेटिवली? पी आर्म से, दैट्स व्हाई इट इज गिवन द नेम क्यू आर्म। ओके चिल्ड्रन, in second picture also you can see upside to the arms it is the P arms and downside to Q arms, little bit length is more than the P arm, that's why name given Q arm. Okay, now we'll see about the chromosomes, their types we'll see on the basis of what it is given. So here you can see in between the two sister chromatid one joint is there, primary constriction is there, that is known as the centromere, and that centromere children on the basis of that only here it is get joined, two chromatid get it joined, and during the cell division it gets separate. Yes, here spindle fibers it get attached, and during the cell division it separate itself and the form two daughter cells, that we are going to learn afterward. Okay, सो दैट सेंट्रोमेयर के पोजीशन पर हम क्लासिफिकेशन करता है, टाइप्स करेंगे हम किसका? टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम। उसके बेसिस पे हम देखेंगे चिल्ड्रन चार टाइप के क्रोमोसोम्स है, विच दे आर हियर यू कैन सी चिल्ड्रन मेटासेंट्रिक, किसके बेसिस पर? सेंट्रोमेयर की पोजीशन क्रोमोसोम में कहाँ पर है, इस बेसिस पे हम देखेंगे कि क्रोमोसोम वो किस टाइप का है, मेटासेंट्रिक, submetacentric, acrocentric and telocentric. These are the four types of chromosome. Actually we have seen the this type only, chromosome इस तरह का दिखता है, no, these four types we can see according to or on the basis of the position of the centromere. अब ये क्या क्या है चिल्ड्रन देखेंगे हम. Okay, तो मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम्स हैज मिडल सेंट्रोमियर, हियर यू कैन सी, एक एक करके देखेंगे बच्चों। मेटासेंट्रिक ये जो दिया है, ये मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम हैज मिडल सेंट्रोमियर फॉर्मिंग टू इक्वल आर्म्स। ये जो आर्म्स है तो यहाँ पे मिडल, नियर बाय मिडल पोजीशन में दिखाया गया है, दे आर हैविंग द टू इक्वल arms of the chromosome and it shows V shape. यहाँ पे आप देख सकते हैं बच्चों, ये क्या दिखा रहा है? V shape. ओके, सो सेंट्रोमियर की पोजीशन इसकी मिडल में है
and that's why it formed two equal arms, and that it is name given the metacentric. अभी देखेंगे चिल्ड्रन सब मेटासेंट्रिक हेयर. तो सेंट्रोमियर की पोजीशन कहाँ पर है, देखो प्राइमरी कंस्ट्रिक्शंस की पोजीशन. सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम हैज अ सेंट्रोमियर slightly away from the middle of the chromosome. Okay, second one देखिए चिल्ड्रन. सब मेटासेंट्रिक chromosome has centromere slightly away from the middle of the chromosome and with one shorter arm, ऊपर का आर्म देखिए शॉर्टर है, and one longer arm and shows the L shape. Yes, here you can see. Now third one is the acrocentric. Acrocentric chromosome has the centromere close to its end with one extremely short and one very long. यहाँ पे देख सकते हो बच्चों, ये जो ऊपर का है आर्म, ये आप देख सकते हो बहुत छोटा है और दूसरा लॉन्ग बहुत बड़ा है. ठीक है, और इसका सेंट्रोमियर का पोजीशन कहाँ पर है बच्चों, क्रोमोसोम्स. दिस एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम हैज अ सेंट्रोमियर क्लोज टू इट्स एंड, यहाँ पे दिखेगा आपको एंड में, विथ वन एक्सट्रीमली शॉर्ट हैंड और दूसरा लॉन्ग आर्म होगा, और इसका शेप लाइक अ जे लाइक स्ट्रक्चर इट कम्स. ओके, एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम. नाउ सी लास्ट वन, दैट इज द टिलोसेंट्रिक क्रोमोसोम. क्रोमोसोम हैज अ टर्मिनल पर सेंट्रोमियर देखिए आप उसका कहाँ पर होगा, here we can see. ये देखिए बच्चों, ये टिलोसेंट्रिक का जो सेंट्रोमियर है हमें कहाँ पे दिखाई देगा, क्रोमोसोम हैज़ अ टर्मिनल सेंट्रोमियर एंड शोज आई शेप हमें दिखाई देगा. ओके, सो दिस टिलोसेंट्रिक क्रोमोसोम इज नॉट, कहाँ पे नहीं दिखाएगा आपको, ह्यूमन बींग्स में. सो अदर थ्री आल्स we can get in the human beings, metacentric, submetacentric and acrocentric. तो ये है types of chromosome children. Different types of chromosomes are there and it is located in a different in a 23 pairs. 23 pairs of chromosome में हमें ये दिखाई देंगे. कहाँ कहाँ पर, अभी वो नंबर मैं आपको बाद में बताऊंगी. मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम्स कौन से पेयर्स पे होगा, सब मेटासेंट्रिक कहाँ पर होगा एंड एक्रोसेंट्रिक कहाँ पर होगा. सो चिल्ड्रन, आई होप you got this point that human being have the 23 pairs of chromosomes and where it is located in the cell, in the nucleus, in the form of a thread like structure, that is the chromatid, and then that chromatid when it gets coiled gets condensed, then it gets the shape like a chromosome, and then chromosome, it is made up of what children, it is made up of small segment, that is the genes, and genes how it is, polymer chain or the small molecules, it is made up of a small molecule that is known as the DNA. and DNA किससे बना है, 3 यूनिट से बना है. उसकी स्टडी हम डिटेल में हमारे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. and the types of chromosome on the basis of their position of the centromere, that also children we have learned. Okay, so I hope so you got this point. So if you have any doubt children, you can ask me. Yes.